Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the ahimsa and non-violence, right? वहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था कि वन नॉन वायलेंस इज इन फैक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मेटाफिजिक्स, राइट. नॉन वायलेंस का अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, राइट. देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ गांधीयन नॉन वायलेंस. फर्स्ट इज non-violence is not same as non-killing. Non-violence is not non-resistant born out of cowardice. Non-violence implies several political values. This value includes love, active resistance to injustice, courageous in the face of violence, non-possessions, truthfulness, and brahmacharya. Non-violence implies bread labor, which Gandhiji derived from Ruskin and Tolstoy. Then non-violence is higher value than life. Then non-violence is in fact the acceptance of spiritual metaphysics. It is not merely a negative act of refraining from doing offense, injury and harm to other, but really represent the ancient law of positive self-sacrifice and constructive suffering. Then second kind क्या था? That was the first kind. Second kind क्या था? Second kind of non-violence was adopted as a measure of expediency and sound policy in same sphere of life. That was the non-violence of the weak or the passive non-violence of the helpless. Then the third level of non-violence is the passive violence of the coward. As Gandhiji has rightly pointed out, cowardice and ahimsa do not go together. It is like water and fire, and you can't trust this cowardice. और वो नॉन वायलेंस कभी नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि ये वो इंसान है जो हमेशा डरते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, और जहाँ पे खतरा दिखे वहाँ से वो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं. उनके पास पावर ऑफ रेजिस्टेंस ही नहीं रहता. देर इज़ अ होप फॉर वायलेंट मैन टू बिकम समडे नॉन वायलेंट, बट देर इज़ नो होप फॉर कोवर्डिस. Then Gandhiji believes that non-violence in its absolute form is not reliable in practice, but relative non-violence can be realized in practice. Similarly, perfect non-violence cannot be attained, but limited non-violence can be attained. Gandhi stated that the divine spark is present within the man and must constantly endeavor to keep alive that divine spark. According to Gandhi, non-violence is a perfect state. It is a goal towards which all mankind moves naturally through unconsciously. He says, if we can manage to apply non-violence successfully at home, it will be in its pure form become an irresistible power. Non-violence in its dynamic condition means conscious suffering. It does not mean meek submission to the will of the evildoers, but it means putting one whole soul against the will of the triad. The Gandhian concept of non-violence is dharma in action and truth translated. It is not a static code of morality ready for adaptation. Then, according to Gandhiji, ahimsa or non-violence is the mean and truth is the end. See, ahimsa और non-violence क्या है? ये एक mean है और truth is the end. They are so intertwined that it is impossible to separate them. See, वो दोनों इतने इंटरकनेक्टेड है कि उन दोनों को आप सेपरेट ही नहीं कर सकते. जिस तरह से सिक्के के 2 कॉइन्स होते हैं, उसी तरह अहिंसा और नॉन वायलेंस भी काम करते हैं. इट मीन्स बेरिंग नो इल विल अगेंस्ट अदर्स. Gandhi is of opinion that killing or injury to life can be an act of non-violence only under certain conditions. These conditions are anger, pride, hatred, selfish consideration, bad intention, and similar other consideration. Any injury to life does under this motive is ahimsa. The negative meaning of ahimsa is non-killing or non-injury. For example, when animal which is going to die is suffering from intense pains, in that case we may kill him to end his suffering. या फिर अगर वुमेन की डिग्निटी पे या उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है और अगर वो हाथ उठाए या शस्त्र होता है, तो ये इन दिस केस यू कैन अडॉप्ट द वायलेंस. इस वक्त आप वायलेंस कर सकते हो. बट फॉर गांधी जी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अहिंसा आर मच मोर बेस देन इज नेगेटिव कैरेक्टर. Ahimsa
is not merely refraining from cause injury to creature. It stands for certain positive attitude towards other living being that one must cultivate. Then moving forward, in its positive sense, Gandhiji said that ahimsa represents one of the basic and essential qualities of mankind. In its possible sense क्या है? Gandhiji said that ahimsa represents one of the basic and essential qualities of mankind. That does not mean that violence does not have any place in life. See, ahimsa क्या है? It is one of the basic and essential quality of mankind, right? But जब अपन उसको essential बोल रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा वायलेंस डज नॉट हैव प्लेस इन लाइफ. इसका मतलब है थोड़ी कि वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है अपनी लाइफ में. इनफैक्ट इवन इन प्रिवेंटिंग वंस एग्जिस्टेंस वन हैज़ टू कमिट हिंसा ऑफ अदर काइंड or the kind, and yet ahimsa is considered to be the law of our species. See, in fact even in preserving one's existence, अगर आपको किसी का एग्जिस्टेंस प्रिजर्व करना है तो क्या है, आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी. या फिर अहिंसा, फिर भी अपन क्या बोलते हैं, अहिंसा इज कंसिडर्ड टू बी द लॉ ऑफ आवर स्पीसीज. इनफैक्ट अहिंसा इज नथिंग बट लव. सी, इनफैक्ट अहिंसा को क्या बोल रहे हैं, ahimsa is nothing but love. Love is a kind of feeling of oneness. See, ahimsa क्या है, it is nothing but love. और love क्या है, it is a kind of feeling of oneness. love क्या है, एक feeling है जिससे अपन क्या है, oneness, एक है अपन, ये वाला feeling रहता है. In an act of love, one identifies himself with the object of his love, and this cannot be possible unless there is an effort to free mind from every such disposition that prevent the spontaneous outflow of love. See, in an act of love, see, अपन अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, सच्चे दिल से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, अपन देखते हैं ना, जब भी वो तकलीफ़ में आता है क्या करते हैं, अपन सब छोड़ छाड़ के उसकी तकलीफ़ दूर करने की ट्राई करते हैं, राइट. अपन उसको बचाने की ट्राई करते हैं. ये सब अपन क्यों करते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लव. Therefore, ahimsa demands a sincere efforts to free mind from feeling like anger, malice, hatred, revenge, jealous, etc. Because this create obstacle in the way of love. Therefore, ahimsa क्या है, ahimsa demands a sincere efforts. इसलिए जब भी आप अहिंसा अपनाने की बात करो, तो जब भी आप अहिंसा अपनाने की ट्राई करो, what you need a sincere efforts to free mind from feeling. आपके एफर्ट्स एकदम सिंसियर चाहिए और आपके दिमाग में गुस्सा, नफरत, रिवेंज, जलस, ये जो सारी गलत फीलिंग है, इन फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स जो है इट वुड क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ लव. से क्योंकि ये फीलिंग क्या करती है, दिस फीलिंग वुड क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ लव. अकॉर्डिंग टू गांधी, लव इज द एनर्जी दैट क्लिंसेस वंस इनर लाइफ एंड अपलिफ्ट हिम. अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्या है, लव इज़ द एनर्जी. लव क्या है, ये एक एनर्जी है, ये इतना पावरफुल है कि आपके दिमाग में अगर बातें भी गंदी आती होगी या सोच भी आपकी गंदी यानी इट वुड भी, अगर आपका सोच हेटरेट, एंगर इस तरफ भी आता होगा, तो वो उसको प्यार से आप बदल सकते हो. अकॉर्डिंग टू गांधी, लव इज़ द एनर्जी that cleanses one's inner life and uplifts it, and as such love comprehends such noble feelings as belovedness, companion, forgiveness, tolerance, generosity, kindness, sympathy. See, जब प्यार से सब कुछ हो सकता है, अगर आपके मन में सबके लिए प्यार की भावना है, तो आपके मन में बट ऑब्वियसली ये फीलिंग भी रहेगी, बेनिवोलेंसेस मतलब बिलोंगिंग का फीलिंग, देन कंपेनियन, देन फॉरगिवनेस, हाँ, मतलब हर किसी को आप माफ़ कर दोगे, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप प्यार से सब कुछ सह लोगे. जेनरोसिटी मतलब दया भाव का रखना, काइंडनेस, सिंपैथी एक्सेट्रा, ये सारे फीलिंग्स भी आ जाएंगे. सी, अगर आप अहिंसा अपना रहे हो तो आपके मन में एंगर, जेलस, ये सब फीलिंग नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए. और आपके मन में सिर्फ ये प्यार वाली फीलिंग आ गई, ये प्यार वाली भावना आ गई है, तो
सिंपैथी, जनरोसिटी, ये भावना भी अपने आप से आ जाती है। देन गांधी बिलीव्ड दैट विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस ट्रूथ कैन नॉट बी रियलाइज्ड। गांधी जी क्या बिलीव करते थे, जब तक आप नॉन वायलेंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सच्चाई भी आपको पता नहीं चलेगी। गांधी एम्प्लॉयड अ क्यूरियस आर्ग्यूमेंट टू एस्टेब्लिश दिस पॉइंट। सी, गांधी जी ने क्या किया है, गांधी एम्प्लॉयड अ क्यूरियस आर्ग्यूमेंट टू एस्टेब्लिश दिस पॉइंट। गांधी स्टेटेड दैट गॉड एंड ट्रूथ आर आइडेंटिकल। गांधी जी ने क्या बोला है, गॉड एंड ट्रूथ दोनों आइडेंटिकल है। अगर आपको भगवान जानना है, भगवान कैसे जानना है, तो सच अपनाओ, तो गॉड एंड ट्रूथ बोथ आर आइडेंटिकल। एट द सेम टाइम गांधी एक्सेप्टेड अ पैंथेसिस कंसेप्शन ऑफ गॉड। उसी वक्त क्या है, गांधी जी एक्सेप्टेड अ पैंथेसिस कंसेप्शन ऑफ गॉड। ही आर्ग्यूड दैट गॉड प्रिविलेट्स ऑल बीइंग। सी, he argued that God privileges all being. All beings are unified by God, and the act of unification is made possible through love or non-violence. See, all beings are unified by God. See, God सबको एक जैसा रखता है, और अगर आप and if you want to unification, अगर आपको the act of unification is made possible, that can be only through love or non-violence. So non-violence is ultimately the terminating bond of the universe that has its origin in God or truth. See, so non-violence क्या है, is ultimately the cementing bond of the universe that has its origin in God or truth. Then non-violence, an example. You can get a clear understanding of what involved in non-violence by looking at the instruction that Gandhi ji gave to followers of the सत्याग्रह movement in India. See, अपने को ये नॉन वायलेंस की अपन इतनी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो नॉन वायलेंस के बारे में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस जो गांधी जी के ने दिए थे वो अपने को अच्छे से पता चल जाएंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस गांधी जी ने कब दिए थे, उनके फॉलोवर्स के दिए थे एट द टाइम ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। असत्याग्रह, फर्स्ट पॉइंट, असत्याग्रह दैट इज अ इविल रेजिस्टर विल हार्बर नो एंगर। अब जब ये सत्याग्रह कर रहे हैं, ये क्या है, सिविल रजिस्टर्स है, विल हार्बर नो एंगर, इसके अंदर गुस्सा बिल्कुल नहीं चलेगा। ही विल सफर द एंगर ऑफ द अपोनेंट। सी, जो फॉलोवर्स हैं, जो सत्याग्रह करने चाह रहे हैं, वो सामने वाले का गुस्सा सहन करेंगे, बट वो खुद गुस्सा नहीं करेंगे। इन डूइंग सो he will put up with assaulted from the opponent, never retaliate, but he will not submit out of fear of punishment or delay to any order given in anger. See, अभी सामने वाला गुस्सा करेंगे तो आप सहोगे, आप खुद उस पर गुस्सा नहीं करोगे, राइट। सामने वाले ने कुछ भी बोला तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ना ही उसकी मांगे, वो जो भी बोलता है वो माननी है आपको। अगर पनिशमेंट के डर से आप पीछे हटोगे तो भी नहीं चलेगा। आपको जो भी है, यू शुड स्टे देयर एंड डट के मुकाबला करो, बट प्यार से, नॉट विद एन एंगर। व्हेन एनी पर्सन इन ऑथोरिटी सीक्स टू अरेस्ट अ सिविल रजिस्टर, he will voluntarily submit to the arrest and he will not resist the attachment or removal of his own property, if any, when it is sought to be investigated by authority. See, जब आप सत्याग्रह करने जा रहे हो, अगर वो सामने वाले ने ऑर्डर दे दिया कि अरेस्ट करो, तो अरेस्ट करो बोला तो आप भागोगे नहीं, ना ही आपका अरेस्ट रेजिस्ट करोगे, तो खुशी खुशी अरेस्ट हो जाना है आपको, राइट। वो रेजिस्ट नहीं करना है, ना ही झगड़ा करना है, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खुशी खुशी अरेस्ट हो जाना है वहाँ पे। If a civil register has any property in his possession as a trustee, he will refuse to surrender it, even though in defending he might lose his life. He will, however, never retaliate. See, if a civil register उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, राइट, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए डिफेंड करना है, भले उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, बट अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। Non-retaliation exclude swearing and cursing. See,
अब नॉन लिटरलाइजेशन इसमें क्या है, एक्सक्लूड्स स्वेरिंग एंड कर्सिंग. Therefore, a civil register will never insult his opponent and therefore also not take part in any of the newly coined phrases which are contrary to the spirit of ahimsa. See, therefore ये जो civil registers है, he will never insult the opponent, मतलब वो सामने का कभी insult नहीं करेगा. ये जो civil registers है वो क्या करेगा, वो सामने वाले का insult कभी नहीं करेगा. Therefore, और वो and therefore he will not take part in any of the newly coined phrases which are contrary to the spirit of ahimsa. Then a civil register will not salute the Union Jack, nor will he insult if it or official, English or Indian. See, अब जो civil registers है वो किसी को भी सल्यूट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स को नहीं, या इंसल्ट करने बोला, इंसल्ट करके सल्यूट कर बोला तो भी नहीं करेंगे, फिर वो चाहे इंडियन रहो या इंग्लिश रहो. In the course of the struggle, if anyone insults an official or commit an assault upon him, a civil register will protect such officer or officers from the insult or attack even at the risk of his life. See, आप जब स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ, अगर किसी ने कोई ऑफिसर का इंसल्ट किया है तो क्या करोगे, वो सिविल रजिस्टर क्या है, वो ऑफिसर की रक्षा करोगे, ना ही उस पर अटैक करोगे, ना ही उसका इंसल्ट करोगे. अब उसको बचाते बचाते आपकी जान भी चली गई तो चलेगा, बट अगर वो ऑफिसर पे कोई अटैक कर रहा है तो आपको उस ऑफिसर की जान बचानी है यहाँ पे. सो दिस वर द पॉइंट्स दैट वर टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग द सत्याग्रह. नाउ अब ये सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सारा पॉइंट ख़त्म हो चुका है. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक. नया टॉपिक क्या है अपना, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ ग्राम स्वराज. ग्राम स्वराज से, ग्राम यानी क्या, विलेज, स्वराज यानी आज़ादी. ग्राम स्वराज इन इंडिया हैड विलेज रिपब्लिक इन द पास्ट. ग्राम स्वराज इन इंडिया हैड अ village republic in the past, right? Gandhiji felt that villages should have the right of managing their affairs. अब गांधी जी को क्या लगता है, विलेजर्स को पूरा हक है उनका विलेज वो अच्छे से चलाए, विलेजर्स के प्रॉब्लम, विलेज कैसा चलाना है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें. गांधी जी को ऐसा लगता है अपना विलेज विलेजर्स ही चलाना चाहिए. द विलेज शुड बी कंप्लीट रिपब्लिक, और जो ये विलेज है वो पूरी तरह से रिपब्लिक रहना चाहिए. मतलब विलेज को ऐसा करो कि बाबा वो सब कुछ अपने आप से खुद करें. इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्डेड द बेस्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ. सी, द विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज रिगार्डेड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. सी, विलेजेस क्या रहना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट रहना चाहिए, क्योंकि वो विलेजेस ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे उनके. Self-sufficient is important if autonomy is to be guarded. See, self-sufficiency रहना ज़रूरी है अगर autonomy is to be guarded. The village should therefore grow food crops and cotton for its cloth. See, अब villages को self-sufficient बनाने की बात कर रहे हैं तो villages कैसे होने चाहिए, वो villages अपने सारे crops खुद ही grow करना चाहिए. Right from cotton, उस वक्त लोग सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहनते थे. आज अपने यहाँ पे ये इटालियन, सैटिन, शिफॉन, ये सब कपड़े आज अपने ज़माने में इतने थे. उस वक्त सिर्फ कॉटन और खादी यही कपड़े थे, राइट. कॉटन, खादी यही रहते थे और यही यूज़ करते थे. लोग कॉटन के ट्री सुखाते थे. कभी किसी आप लोगों ने कॉटन का झाड़ वगैरह देखा है? कॉटन के झाड़ लाइक छोटे छोटे ही रहते हैं और उस पर वाइट कलर का सच में कॉटन रहता है. फिर वो कॉटन सारा इकट्ठा होके फैक्ट्री में जाता है. आजू बाजू कहीं ना कहीं तो फैक्ट्री रहती है. उस फैक्ट्री में वो सारा कॉटन प्रोसेस होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी कभी कभार बीज कचरा रहता है ना कॉटन में, तो वो प्रोसेस करते हैं तो ये सारा कचरा निकल जाता है और उसके बाद प्रोसेस होता है, उससे कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं, डाइंग एंड ऑल द प्रोसेस आफ्टरवर्ड्स इट टेक्स प्लेस. तो गांधी जी क्या बोलते हैं, विलेजर्स ने अपने फूड क्रॉप्स भी खुद ही उगाने चाहिए और कॉटन भी खुद ही ग्रो करना चाहिए so that they can make their clothes. Area should be reserved for cattle raising and for recreation and games. See, area
रिजर्व रखना चाहिए कैटल ग्रेसिंग के लिए। मतलब उस वक्त लोगों के पास बहुत से गाय भैंस बकरी बहुत रहते थे उस वक्त, वो हैन वगैरह बहुत रहने के, तो कैटल्स के लिए एरिया रिजर्व रहना चाहिए ताकि वो गेजिंग वगैरह जाके वो चारा वगैरह खाऊ शकता त्यासाठी। और रिक्रेशनल के लिए भी लाइक खेल कूद के लिए बच्चों के लिए मैदान भी रिजर्व रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। द विलेज विल ग्रो यूजफुल मनी क्रॉप्स इफ लैंड इज अवेलेबल। सी विलेजेस क्या करते हैं, अगर विलेजेस को लैंड अच्छे से मिलती है, अच्छे से अवेलेबल रहती है, तो जो भी यूजफुल मनी क्रॉप्स वगैरह है वो खुद ही ग्रो करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन विल बी कंपल्सरी। सी प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी देना चाहिए विलेजेस को। कितने अच्छे थॉट्स है गांधी जी के, देखो। एज फार एज पॉसिबल एवरी एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस। सी जहाँ तक पॉसिबल है जो भी एक्टिविटी करना है, वॉट एवर एक्टिविटी यू वॉन्ट टू टेक, इट शुड गो एज पर द कोऑपरेटिव बेसिस। देर विल बी नो कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। वाह, देखो यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ना ही अनटचेबिलिटी है। तो अपन ने देखा ना लास्ट टॉपिक में वगैरह अनटचेबिलिटी कितनी थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वक्त वगैरह। इट वाज जस्ट बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फुल्ले कि बाबा और बहुत से फ्रीडम फाइटर, उनकी वजह से आज अनटचेबिलिटी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है अपने देश में। राइट नाउ इंडिया में ये सब कुछ भी नहीं है इतना। इनफैक्ट अनटचेबल है, किसी को आप बोल भी दोगे तो आपको जेल होगी। आज हालत इतनी अच्छी है अपने यहाँ पे। सो अब उस विलेज में क्या है, जो भी काम करोगे आप एवरी इट शुड बी ऑन द कोऑपरेटिव बेसिस, और ना ही कोई कास्ट सिस्टम है ना ही कोई अनटचेबल्स है। द विलेज विल मेक अरेंजमेंट फॉर इट्स प्रोटेक्शन थ्रू अ सिस्टम ऑफ विलेज गार्ड। सी अब सेफ्टी के लिए क्या करेंगे आप, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप खुद ही अरेंजमेंट करना है, और वो अरेंजमेंट आप कैसे करोगे, थ्रू अ सिस्टम ऑफ विलेज गार्ड। विलेज गार्ड के सिस्टम से आप खुद की रक्षा खुद करोगे। ऑल रेसिडेंट विल बी ऑल रेसिडेंट विल बी गार्डेड बाय रोटेशन। सी रोटेशन के हिसाब से हर कोई काम करेगा। लाइक गार्ड्स रहेंगे, विलेज गार्ड्स, जैसे घर का हट्टा कट्टा आदमी, आज ये इतना एरिया तू गार्ड करेगा, राइट, फिर 4 घर तू गार्ड करेगा। आपल्या सोसायटीमध्ये असतो ना रात्री, हाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं, तो रोटेशन वाइज वो भी चेंज वगैरह होते रहते हैं, टाइमिंग भी चेंज होता रहता है। तो ये कंसेप्ट तभी भी था। द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज विल बी कंडक्टेड बाय अ पंचायत ऑफ 5 पर्सन। अब यहाँ पे भी पंचायत, अब विलेज कैसे चलेगा, कोई ना कोई तो गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छे से काम करे। द गवर्नमेंट ऑफ द विलेज विल बी कंडक्टेड बाय द पंचायत ऑफ 5 पर्सन annually elected by all the adult villagers with prescribed qualification। और ये पंचायत कैसे बैठेगी, ये पंचायत 5 लोगों की होगी, 5 लोग रहेंगे पंचायत में, राइट। और ये कैसे इलेक्ट होंगे, अडल्ट विलेजर्स इलेक्ट करेंगे विथ प्रॉपर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। देखो उस वक्त वो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक क्वालिफाइड है, उसको वो लोग इलेक्ट करते हैं। द पंचायत विल बी द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कंबाइंड। सी अब ये 5 लोग क्या करेंगे, वो जज का भी काम करेंगे, लॉ का भी काम करेंगे, और सादा एग्जीक्यूटिव का भी काम करेंगे। आपने पुराने मूवीज़ में वगैरह देखा ना, पंचायत बैठती थी झाड़ के नीचे एंड ऑल, कट्टा रहता है, और फिर उधर किसी के झगड़े वगैरह सॉर्ट आउट होते हैं, हाँ नए नए योजनाएं बनाई जाती है। द पंचायत विल वर्क थ्रू द लॉ ऑफ इट्स ओन मेकिंग। सी पंचायत कैसे काम करेगी, विल वर्क थ्रू द लॉ ऑफ इट्स ओन मेकिंग। देन इन द विलेज रिपब्लिक देयर वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी। सी विलेज रिपब्लिक में क्या रहेगी, देयर वुड बी ट्रू डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन विल चेक रॉन्ग डूइंग। पब्लिक ओपिनियन क्या करेंगे, दे विल चेक द रॉन्ग डूइंग। द पंचायत विल रिवाइव इंडस्ट्रीज। पंचायत इंडस्ट्रीज का भी ध्यान रखेगी। इट विल हैव ऑल द पावर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट इट्स ड्यूटी। सी अब ये क्या है, अब ये पंचायत के पास क्या रहेगी, सारे पावर्स रहेंगे जो जो ज़रूरी है अपने ड्यूटीज़ पूरे करने के लिए। द विलेज रिपब्लिक वुड बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक कॉन्क्रीट सर्कल इन द ओशन एंड नॉट लाइक अ पिरामिड। सी ये विलेज रिपब्लिक कैसा बना रहेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ओशन के जैसे पूरा गोल में, और ओशन के जैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा।
पिरामिड के जैसा नहीं, जो ऊपर ऊपर टॉप पे रहता है वक्र, वैसे कुछ नहीं होगा. देयर वुड बी थस बी नो डोमिनेशन बट नेचुरल इंटरडिपेंडेंसी. अभी यहाँ पे डोमिनेशन कोई किसी को नहीं करेगा, यहाँ पे डोमिनेशन का चांस ही नहीं है ना. बट there would be natural interdependency. The village republic would look after the economic, social and moral cultural development of the people. See, the village republic, अभी जो villagers है वही सब चीज़ का ध्यान रखेंगे. They will look after the economic, social, moral, cultural development of the people. Gandhiji's concept of Gram Swaraj is an alternative mode of economic, political organization and social order. See, गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, गांधी जी का जो कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव मोड है ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑर्डर. इट कुड गिव फ्री डिग्निटी एंड जस्टिस टू इवन द लास्ट मैन. सी, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर कोई इक्वली रह सकता है. इट वुड गिव फ्रीडम, डिग्निटी एंड जस्टिस इवन टू द लास्ट मैन. लास्ट इंसान भी फ्रीली और प्रॉपर जस्टिस के साथ यहाँ पे रह सकता है. देन गांधीजी's view on Swaraj will start in the next lecture. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@araham.edu.in. Thank you.